Okay. So, very good evening, all the participants. Today, we'll try to understand the interplay between the various allied laws and the case laws, right? मैडम To स्टार्ट कर लो। develop a better हाँ मैडम understanding of the स्टार्ट करो allied laws. क्लास। So, this law, this 238A, it came in June 2018, right? And the date of this judgment is October 11, 2018. When this law came, when this IBC came in 2016, this 238A was not there. Please understand. This 238A was not there. So there was a lot of confusion when the Limitation Act will start. Whether the Limitation Act will apply to this. And because this law has come, this section 238A has come on in June 2018. So whether it will have retrospective application. So this is the precise question which was there in this case. ठीक है, तो ये केस था. So this case addressed the crucial issue of limitation period under IBC, specifically for applications filed under Section 7 and Section 9. So at the time, there was ambiguity as to whether the Limitation Act applied to IBC proceedings, especially since the IBC did not initially mention it explicitly. When this law came in 2016, so this 238A section was not there. Okay? This section 238A was enforced with effect from 6th of June 2018. ठीक है, तो ये आ गया इसमें. ये अपील आप सोचिए, ये पहले की है, इस लॉ के आने से पहले की, जजमेंट बाद में आई. तो अब बात क्वेश्चन क्या आया, ये क्वेश्चन आया कि वेदर एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 ऑफ द कोड कैन बी फाइल्ड बिफोर ए इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट विच इज बार्ड बाय लिमिटेशन, एंड वेदर सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, section 5 of the limitation act, we know it talks of condonation of delay, right? Delay. And third question was whether this section 238A as introduced by the second amendment act, it operates retrospectively. So these were the issues involved. ठीक है, now please tell me कि what was the date of the debt in this case. इसमें जो डेट की डेट है वो क्या थी, इसको भूल जाओ, प्रेजेंटेशन में क्या लिखा है. Sir, it was, I think so, 11 years back, debt was there. तो 11 क्या है, years. वो डेट जो था वो था 1990 का, लिखा हुआ है यहां पर, ये नजर आ रही पीपीटी. यस सर। Yes. हाँ, तो वो कहता है इसमें क्या हुआ, वो कहता है भाई कोड कैन नॉट बी ट्रिगर्ड इन द ईयर 2017. आप 2017 में फाइल कर रहे हो एप्लीकेशन फॉर अ डेट विच वाज टाइम बार्ड से 1990. बट प्लीज अंडरस्टैंड कि ये वाला 238 उस टाइम आया नहीं है जब ये एप्लीकेशन फाइल हो रही है. ठीक है, एप्लीकेशन फाइल हो रही है 2017 में, 238 आया है जून 2018 में. 18। तो वो ये कहता है कि भाई अगर पुराने पुराने क्लेम, कल को आप 1950 वाला क्लेम भी ले आओगे, तो जब ये लॉ आया आईबीसी, तो सबकी ये अंडरस्टैंडिंग थी भाई 2016 से 3 साल होंगे अब, क्योंकि लॉ ही अभी आया है. तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ये तो आपको डेट की डेट से देखना पड़ेगा. ठीक है, उसने कहा भाई यू कैन नॉट ट्रिगर दिस कोड फॉर स्टेल और डेड क्लेम्स. ठीक है, लिमिटेशन एक्ट तो शुरू से चल ही रहा है, ये थोड़ी लिमिटेशन एक्ट पहले नहीं था, आईबीसी आने से पहले ही लिमिटेशन एक्ट था. लिमिटेशन एक्ट कब से है, 1963 से है शायद, है ना, Yes, sir. तो बहुत पुराना है. तो वो ये कहता है कि अदरवाइज इट विल लीड टू ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेस. सो दिस बीइंग द केस, द एक्सप्रेशन डेट ड्यू. अब उन्होंने डेट ड्यू का मतलब देखा, उन्होंने कहा डेट ड्यू का मतलब क्या है, डेट ड्यू एंड पेएबल. ड्यू भी होना चाहिए और पेएबल भी होना चाहिए, दैट इज डेट्स दैट आर नॉट टाइम बार्ड. So Supreme Court have held that at least insofar as the code is concerned, the intention of the legislature from the very beginning was to apply to the Limitation Act to NCLT and NCLAT while deciding applications filed under Section 7 and 9. ठीक है, and Section 433 of the Companies Act, which applies to the tribunal and appellate tribunal, expressly applies the Limitation Act to the appellate tribunal, that is NCLAT as well. तो इसमें क्या हुआ, इस केस में this judgment laid out a clear precedent that IBC proceedings are governed by the Limitation Act, ensuring that only legally enforceable, that is not time barred debts can be
the subject of CIRP. Yeah. So it prevented misuse of the IBC for reviving old or dead claims. ठीक है, ये वाली जजमेंट थी इसकी। अच्छा, नेक्स्ट केस कौन सा था इसमें जो लिमिटेशन एक्ट से परटेन करता है? वो केस है आपका ये वाला, बाबूलाल। बाबूलाल बाबूलाल। वरदरजी हाँ। गुर्जर वर्सेस वीर गुर्जर एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज। ठीक है हम्म। नरेंद्र जी, आपने बहुत सारे केस लॉज पढ़े हैं, ये वाला भी पढ़ा होगा, तो हाँ इसको सर। बताओ समरी वे में क्या है ये केस क्या है? उसमें भी लिमिटेशन एक्ट का ही जिक्र किया है सर कि वो बिफोर तो वो तो लिमिटेशन है ही, एक्ट। लिमिटेशन एक्ट तो है ही, बट केस बताओ ना, केस क्या है? केस बताओ ना। एक मिनट, मेरे को एक मिनट दो आप प्लीज। हाँ जी, बताओ यार, रामायण 36 बार पढ़ ली, अब तो बता दो सीता कौन थी। हाँ सर। हम्म ऋषभ जी, आप बताओ क्या है केस? सर एक्चुअली मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा अगर पढ़ूंगी तो बता पाऊंगी। अभी पढ़ाई नहीं? मतलब अभी मैंने आज मोबाइल से ऑन किया है। अरे आज नहीं, ये तो 2 साल से पढ़ रहे हो आप आईबीसी। अच्छा सर, एक्चुअली केस लॉज में ना कभी इतना टाइम दिया नहीं है कभी भी। ओके, तो कब दोगे आप टाइम? सर अभी मतलब थोड़ा सा शुरू कर रही हूँ मैं। कल मैंने कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस की समरी देखी थी, कुछ 5-6 केसेस की, बट अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है। काजल जी, आप बताओ क्या है So, केस है क्या? इस केस so में क्या कहा इसने एक्चुअली, मेन बात क्या है इसमें? इस केस में ये कहा कि जो डेट ऑफ डिफॉल्ट है ना, वो 8 जुलाई 2011 है। क्योंकि जब आप केस प्रेजेंट करते हो तो आप फैक्ट्स देते हो। इसमें स्ट्रेस इस बात पे दिया गया कि डेट ऑफ डिफॉल्ट जो है 8 जुलाई 2011 है। सीधी सी बात है, जब आप कह रहे हो जी 8 जुलाई 2011 डेट ऑफ डिफॉल्ट है, और आप एप्लीकेशन दे रहे हो कब, मार्च 2018 में, तो क्या लिमिटेशन पीरियड अप्लाई होगा नहीं होगा? होगा सर। इतनी सी बात है बस। इस केस में यही था बेसिकली। तो इसमें ये कहा भाई, जो लिमिटेशन पीरियड है फॉर CIRP एप्लीकेशंस, इट इज 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट। Hence, application made by financial creditor under Section 7 in the month of March 2018 seeking initiation of CIRP in respect of corporate debtor with specific assertion of date of default as 8th July 2011, having been filed much later than the period of 3 years from the date of default as stated in the application, was to be rejected as being barred by limitation. तो मेन कहानी इसमें ये थी कि इन्होंने ये कहा, खुद ही कह रहे हैं एप्लीकेशन में कि जी डेट ऑफ डिफॉल्ट जो है वो 8 जुलाई 2011 है। भाई जब 2011 की डेट है और आप 2018 में एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, तो क्यों फाइल कर रहे हो? लिमिटेशन एक्ट तो लागू हो गया ना, टाइम बार्ड हो गई ना ये तो। जब टाइम यस सर। बार्ड हो गई तो फिर, अच्छा टाइम बार्ड अगर हो जाए तो फिर क्या आपके पास कोई ऑप्शन रहती है क्या? कॉन्डन कॉन्डन द डीले सर। हाँ, तो कंडोनेशन ऑफ डिले एक ऑप्शन रहती है, बट आपको सूट फाइल करने से पहले ही डिले कंडोन कराना पड़ता है। कंडोनेशन ऑफ डिले आपको करवाना पड़ता है कि भाई आप कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। ठीक है। अच्छा, एक ऐसा भी केस बता सकते हो क्या जिसमें कंडोनेशन ऑफ एप्लीकेशन की डिले नहीं लगाई गई, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई ठीक है, चाहे कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन आप लगाओ नहीं लगाओ, अगर सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं तो देन वी कैन एडमिट द एप्लीकेशन। ऐसा भी कोई केस लॉ है क्या?
वो इनोवेटिव वाला सर, फर्स्ट केस लो है ना सर? कौन सा? फर्स्ट केस लो आईबीसी, इनोवेटिव इंजीनियर्स, इनोवेटिव इंडस्ट्रीज और ऐसे ऐसे बैंक एंड अदर्स। ना, नहीं 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 नहीं, वो केस नहीं। वो नहीं है सर। इसका केस है वो लक्ष्मीपत खुराना वाला। ओके सर, लक्ष्मीपत लक्ष्मी। खुराना है, कोई और एक और केस है, याद है। मैं देखता हूँ अभी वो अभी अपने सिलेबस में भी है या नहीं, दैट इज अनदर क्वेश्चन। जस्ट लेट मी सी। पहले तो वो था हमारे सिलेबस में, उसका नाम मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, एक मिनट। हम्म, लक्ष्मीपत खुराना नहीं, कोई सिंह सिंह नाम था उसका, कुछ अलग ही नाम था। कौन से फोरम का ऐसा? सुप्रीम कोर्ट, एनसीएलटी? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। मेरे को लग रहा है वो केस लो निकाल दिया कोर्ट से, अब नहीं है शायद। ऐसा मुझे लग रहा है कोई केस लो शायद है नहीं। चलो कोई बात नहीं, बाद में ध्यान आ जाएगा फिर लिख देंगे। कुछ और ही केस लो, चलिए छोड़िए। तो इसमें बेसिकली ये था, इतनी सी बात है कि 2011 का आप जब डेट ऑफ डिफॉल्ट बता रहे हो और आप 2018 में एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, तो नेचुरली इट इज टाइम बात। ठीक है। अच्छा, थर्ड केस लॉ कौन सा है लिमिटेशन एक्ट पर? 26, 26 देखते हैं। ये 26 है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड वर्सेस टुलिप स्टार होटल्स। ये हम्म। क्या केस है नरेंद्र जी? हाँ सर, उसमें वही लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय वर्क ड्यूरिंग सीआरपी। नहीं देखो, लिमिटेशन पीरियड हम डिस्कस कर रहे हैं, हाँ लिमिटेशन सॉरी पीरियड सर। की बात करो। हाँ सर, हाँ सर। कि लिमिटेशन वाला कौन सा पॉइंट इसमें डिस्कस किया गया? इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्रायर डिस्प्यूट, उसके बारे में चर्चा हो रहा है शायद, नो, दैट इज ट्रू। जितना मैं स्लाइड पे पढ़ रहा हूँ। इसमें बेसिकली क्या था, ये मैं थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ता हूं इसका। सो सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस said that the time of 14 days since section 7 subsection 4 of the code to ascertain the existence of a default is apparently. So there were various issues discussed in this case. One issue was that whether this 14 days period is directory or mandatory. So Supreme Court observed that the time of 14 days since section 7 subsection 4 of the code to ascertain the existence of a default is apparently directory and not mandatory. An application to the AA under section 7 in the prescribed form cannot be compared with a plaint in a suit and cannot be judged by the same standards as a plaint in a suit or any other pleadings in a court of law. The application cannot be dismissed without complying the requisites of the proviso to section 7 subsection 5, that is non-occurrence of default or incomplete application and non-pendency of
disciplinary proceedings against the IP. Now regarding the limitation. Regarding limitation, as regards the limitation, the SC held that entries in books of accounts and or balance sheet of a CD would amount to an acknowledgement under Section 18 of the Limitation Act 1963. Accordingly, if there were an acknowledgement of the debt by the CD before expiry of the period of limitation of 3 years, the period of limitation would get extended by a further period of 3 years. Further, there is no bar to the filing of documents at any time until a final order either admitting or dismissing the application has been passed. So this was the issue. So it says that if there is an acknowledgement of debt by the CD before expiry of the period of limitation, then the period of limitation would get extended by a further period of 3 years. So this was the case. अब एक बात इसमें ये देखते हैं, एक बार ना जरा इसको indianqanun.org पर केस खोल के देखो, ठीक है? मैं भी कर रहा हूं इसको भाई, मैं तो इसीलिए कहता हूं यार लैपटॉप लेके बैठा करो कम से कम पढ़ते टाइम, ऐसे नहीं ऐसे ही आ गए। उससे क्या होता है, मोबाइल पे ना लिमिटेशन हो जाती है थोड़ी। मोबाइल पे इतनी जल्दी काम आप कर नहीं सकते, ना पढ़ सकते, थोड़ा सा इशू आता है। ये indianqanun.org, इस पे मैंने खोला केस ये, ठीक है? तो थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इस केस को। तो ये क्या स्क्रीन नहीं कहता है? दिख स्क्रीन एक सर। अब मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट। हम्म ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी आपको। अब ये केस लॉ नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पर, हम्म। है? हाँ सर, आ रहा है सर। अब इसमें ये देखते हैं, मेन चीज अपने को क्या देखनी है, ये देखिए ये केस है। ये कहता सो है कि ऑन और अबाउट 8 मार्च 2002 ए लोन एग्रीमेंट वाज एक्सिक्यूटेड बाय एंड बिटवीन ए कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स, ठीक है? 2002 में एग्रीमेंट था, कितने का? 129 करोड़ का, ठीक है? अब 5 जून 2003 को द सीडी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद अबू धाबी कमर्शियल बैंक, whereby Abu Dhabi Commercial Bank agreed to advance US dollars ये 29 million to the Okay. corporate debtor for the repayment of the loan taken by the corporate debtor from the consortium, ठीक है? अब ये वाला जो लोन लिया था 2002 वाला, इन्होंने कहा कि भाई ये इन्होंने टेक ओवर कर लिया एक किस्म से अबू धाबी कमर्शियल बैंक ने, ठीक है? कि भाई आप इनको पेमेंट कर दो। It is stated that the corporate debtor repaid the amount disbursed by Bank of India to the corporate debtor under the said loan agreement from out of the funds disbursed to the corporate debtor by ADCB between August and December 2003, ठीक है? इन्होंने क्या किया, इन्होंने किसका लोन दे दिया? बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है? चलिए, in August September 2008 a bank guarantee issued by Bank of India in favor of Abu Dhabi Commercial Bank on behalf of the corporate debtor was invoked by Abu Dhabi Commercial Bank and Bank of India paid rupees 4 crore 49 lakh something, ठीक है? Then they also converted their facility under the loan agreement into non-fund based bank guarantee, ठीक है? On 1st December 2008 the account of the CD in the Bank of India was classified as NPA, and on 31st December 2008 an assignment agreement was executed by Bank of India assigning its receivables to the appellant financial creditor. appellant financial creditor कौन है? यही एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है? इन्होंने असाइन कर दिया कब? 31 दिसंबर 2008 को, ठीक है? Then in 2011 the CD proposed a settlement कि भाई they will pay interest at the average rate of 21% per annum. The corporate debtor would pay a sum of rupees इतना,
कॉर्पोरेट डेटर बैलेंस एग्रीगेट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट दे विल पे, ठीक है, इन 2011. Then in February the CD submitted a revised proposal, ठीक है. Then in 2011 settlement agreement was there. This is the timelines 11, 12, 13, ठीक है. ये सब इनके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है बार बार, ठीक है, एक्सटेंशन के लिए. On 6th May 2014, the appellant invoked the personal guarantee of Mr. Ajit Kerkar, managing director of the CD. The corporate debtor acknowledged its liabilities. देखो ये इंपॉर्टेंट है. Towards the appellant in its financial statements from 2008-9 to 2016-17. तो ये अपनी बैलेंस शीट में एक्नॉलेज कर रहे हैं इस लाइबिलिटी को, ठीक है. The appellant has filed an application to bring on record additional documents which were part of the records below, including the copies of the financial statements. तो इन्होंने जब AI अपना एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने जब एप्लीकेशन लगाई है तो इन्होंने कॉपीज ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी लगाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी लगाए, ठीक है. अब आप ये देखो कि 2016-17 तक वो रिकॉग्नाइज कर रहा है अपनी बैलेंस शीट में कि भाई लाइबिलिटीज है. और ये सेक्शन 7 वाली एप्लीकेशन कब फाइल हो रही है? ऑन 3rd of April 2018. इसका मतलब 3 साल से कम हो गया ना भाई. 2016-17 की बैलेंस शीट में 2016-17 का मतलब ही हो गया मार्च 2017, तो वैसे ही हो गया, है ना. तो जब आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो उसको और आप 18 में एप्लीकेशन लगा रहे हो तो इट इज नॉट बार्ड बाय लिमिटेशन, ठीक है ना. डेट जब मर्जी लिया हो, डेट की कहानी तो पुरानी है ना. अब अगर वो कहने लगे जी डेट तो हमने 2002 में लिया था, ये देखो ना कहानी कब से शुरू हो रही है. 19 ये शुरू हो रही है दिसंबर 2002 से. 2002 में लोन लिया था. अब कोई कहे जी 2002 का लोन है और अब डिफॉल्ट है, तो फिर वो तो कहानी नहीं बनेगी ना. अब ये कह रहा है कि इसने बैलेंस शीट लगाई, बैलेंस शीट में आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो लाइबिलिटी को, तो 2016-17 तक आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, 2018 में है तो इट्स नॉट बाय लिमिटेशन. ये कहानी है. सर बैलेंस शीट में भी एक्नॉलेज करेंगे तो उसको मान हाँ, लिया क्योंकि जाएगा. बैलेंस शीट ऐसा होता है ना, बैलेंस यही तो है, बैलेंस शीट में एक्नॉलेज करते हैं तो डायरेक्टर साइन करते हैं ना उस बैलेंस शीट को. ओके सर. तो जब बैलेंस शीट साइन कर दी, डायरेक्टर ने साइन कर दी, तो इसका मतलब एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट हो गया. ओके सर. अब इन्होंने शेयर होल्डर ऑफ द सीडी, इन्होंने क्या किया, अपील फाइल की एनसीएलटी में, ठीक है. इन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो एप्लीकेशन एडमिट हो गई है, एनसीएलटी ने एडमिट कर ली थी, एनसीएलटी में चले गए. एनसीएलटी में क्या कहा इन्होंने, अपील फाइल की. इन्होंने क्या कहा, देयर इज नो डेट ड्यू एंड पेएबल, ठीक है. The amounts advanced by the consortium to the corporate debtor have been repaid. In the statutory notice issued by the appellant to the corporate debtor, the appellant had claimed that principal amount of it was due from the corporate debtor to the appellant. The corporate debtor has paid the appellant much more than the principal amount claimed by the appellant as per the table. तो इन्होंने बताया भाई हम प्रिंसिपल अमाउंट से तो बहुत ज्यादा दे चुके हैं, बट इंटरेस्ट भी हो गया था ना काफी सारा, और प्रिंसिपल उसमें तो इंटरेस्ट भी आता है. वो ये कहता है, even though the principal amount has been paid in full in the application under section 7, the appellant claimed that principal amount of 35 crores 43 lakhs 72,852 and 149 crore 91 lakhs 24,581 towards interest is due, ठीक है. तो बेसिक बात इसमें यही है, वो ये कह रहा है द एप्लीकेशन ऑफ द अपेलेंट अंडर सेक्शन 7 इज होपलेसली बार्ड बाय द लिमिटेशन, द सेम हैविंग बीन फाइल्ड अबाउट 8-9 years आफ्टर द अकाउंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर वाज डिक्लेयर्ड एनपीए. ये कह रहा है कि भाई ये टुलिप स्टार होटल्स कह रहा है कि ये तो बार्ड बाय लिमिटेशन है, क्योंकि एनपीए तो डिक्लेयर कर दिया आपने 2008 में, है ना. Even assuming the corporate debtor had acknowledged liability, the last letter of acknowledgement was written in April 2013.
वो कहता है हमने तो एक्नॉलेजमेंट दिया था 2013 में, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टिल एक्सपायर्ड इन अप्रैल 2016। भाई 13 से भी अगर आप ले लो 3 साल, तो 16 में एक्सपायर हो जाएगा। द कॉर्पोरेट डेटर हैज नॉट एक्नॉलेज एनी डेट इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। अब एनसीएलटी ने क्या कहा? एनसीएलटी ने कहा कि भैया बुक्स जो है, NCLT held in the present case, Asset Reconstruction Company India Limited has failed to bring on record any acknowledgement in writing by the corporate debtor or its authorized person acknowledging the liability. NCLT ने कहा, आप ये ध्यान रखो कि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, तो NCLT ने क्या कहा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैनॉट बी ट्रीटेड एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट पेएबल टू द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड। ठीक है। तो एनसीएलटी ने रिवर्स कर दिया जजमेंट। अब चलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता? दो द फाइलिंग ऑफ द बैलेंस शीट इज बाय कंपल्शन ऑफ लॉ, द एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट इज नॉट नेसेसरीली सो। In fact, it is not uncommon to have an entry in a balance sheet with notes annexed to a forming part. ठीक है। बेसिकली इसमें यही चल रहा है कि भैया अगर बैलेंस शीट में हो गया तो क्या उसको माना जाएगा एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट या नहीं। ठीक है। ये नोट्स ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं। ये नोट्स ऑफ अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है इस बारे में। अच्छा, अब ये क्या कहता है? ये कहता है जी, फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग लिमिटेशन द मोस्ट रेलेवेंट बैलेंस शीट इज द बैलेंस शीट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2014-15, which as pointed out by Mr. Call was signed on 14th May 2015. The balance sheet acknowledged the continuance of the juror relationship of the debtor and creditor. ठीक है। The only remark made by the CD related to the rate of interest, which according to the corporate debtor would be 12.85% and not 22%. ठीक है। क्योंकि सेटलमेंट एग्रीमेंट में तो कहा था 22% देंगे इन्होंने, है ना, पर वो एग्रीमेंट रिवोक हो गया, तो उसने कहा भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.85 होना चाहिए, लेकिन डेट के बारे में कुछ नहीं कि डेट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो द एप्लीकेशन ऑफ द appellant अंडर सेक्शन 7 was filed on 3rd of April 2018, well within 3 years from 14th May 2015, being the date on which the balance sheet was signed. ठीक है। तो उन्होंने कहां से लिया? डेट ऑफ साइनिंग ऑफ बैलेंस शीट से। सिमिलरली द बैलेंस शीट फॉर द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर signed on 29th August 2016 also acknowledged the existence of juror relationship of debtor and creditor. ठीक है। द बैलेंस शीट ओनली कंटेन्ड ए सिमिलर एडिशनल रिमार्क विद रिगार्ड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए लास्ट में पढ़ लेते हैं। अब लास्ट में क्या कहा? इसमें ये कहा, इन आवर व्यू, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, द एनसीएलटी अर्नड इन लॉ in holding that the books of account of a company could not be treated as acknowledgement of liability in respect of debt payable to a financial creditor. तो एनसीएलटी ने रॉन्ग जजमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोल रहा है। ठीक है। तो ये कहानी है। तो फॉर द रीजंस डिस्कस्ड अबाउट द इम्प्यूग्न्ड जजमेंट एंड ऑर्डर इज अनसस्टेनेबल इन लॉ इन फैक्ट्स। मतलब एनसीएलटी के अगेंस्ट में अपील की थी ना सुप्रीम कोर्ट में, द अपील्स आर अकॉर्डिंगली अलाउड एंड द इम्प्यूग्न्ड जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी इज सेट असाइड। ठीक है। चलिए ये हो गया। तो बेसिकली इन्होंने क्या माना कि अगर आपकी बैलेंस शीट में है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है, ठीक है, तो वो मान लिया जाएगा कि आपकी लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है और फिर वहीं से ही डेट ऑफ आपका एक्नॉलेजमेंट मान ली जाएगी। चलिए दोबारा चलते हैं हम लोग अपने उस पर, कहाँ पर थे हम लोग? ये तो ये 3 हमने केस लॉ पढ़े लिमिटेशन एक्ट पर। अब एक दूसरा कोई एक्ट पकड़ते हैं और उसके केस लॉ देखते हैं।
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पर क्या है कि पी मोहन राज एंड अदर्स वाला केस है। ठीक है, तो पी मोहन राज वाला केस क्या है बताइए जरा। यस सर, उसमें पर्सनल लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर विल बी देयर हाँ, वेरी इन गुड। केस ऑफ चेक बाउंसिंग केस हम्म। ड्यूरिंग मॉनिटरिंग सर। हाँ, वो ये कहता है कि देखो जी, मॉरेटोरियम जो है ना, मॉरेटोरियम का क्या मतलब है? मॉरेटोरियम तो लगता है सीडी पर, ठीक है, हम्म डायरेक्टर्स पर तो मॉरेटोरियम लगता नहीं है। हम्म तो वो ये कहता है कि जो डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी है वो चलती रहेगी, और डायरेक्टर के अगेंस्ट में आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग कंटिन्यू कर सकते हो। ये केस है बेसिकली। यस सर, तो सही पी बोला मोहन सर। राज एंड अदर्स, so steel products were supplied by the respondent to one Messrs Diamond Engineering, the company, from 21st September to 11th November 2016, as a result of which 24 crore was due and payable by the company. So 51 checks were issued in favor of the respondent towards the amount payable for supplies, all of which were returned dishonored for the reasons funds insufficient. ठीक है, ये शाह ब्रदर्स ने क्या किया था? शाह ब्रदर्स ने स्टील प्रोडक्ट सप्लाई किए थे, इनको 51 चेक्स मिले और वो सारे के सारे चेक बाउंस हो गए, फंड्स इनसफिशिएंट। इन्होंने एक डिमांड नोटिस दिया, स्टैट्यूटरी डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 138 रेड विद सेक्शन 141 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, calling upon the company and its three directors, the appellant number 1 and 1 to 3 herein, to pay this amount within 15 days of the receipt of the notice. ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए? हमें सेक्शन 138 और 141 एक बार पढ़ लेने चाहिए। ठीक है, तो एक बार सेक्शन 138 पढ़ेंगे जरा, सेक्शन 141 141 ऑफ सर नेगोशिएबल आई इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। ओके सर। हम्म, कि क्या कहता है ये? कोई भी पढ़ लो, जो भी लोग बैठे हैं कोई भी पढ़ सकता है। भाई बेसिकली पढ़ना क्या है कि जब चेक बाउंस हो जाए कितने दिन में नोटिस देना है। हाँ जी, मैडम आप तो एक्सपर्ट हो, काजल किरण जी, यस सर। आप तो डीआरटी की प्रैक्टिस करते हो। भाई चेक बाउंस हो जाए सर कितने दिन में नोटिस देना है? सर नोटिस 30 डेज में सर, टोटल तो 45 डेज का पीरियड है, 30 डेज में इसको दे देना है। मतलब जैसे चेक बाउंस हो गया किसी का, ठीक है, यस। अब चेक बाउंस होने से कितने दिन में वो नोटिस देगा उसको? पहले पहले वो नोटिस देगा ना, भाई पेमेंट करो, मेरा चेक बाउंस हो गया, तो उसका पीरियड क्या है? 15 डेज। हैं, 30 डेज। 15 डेज है। एक बार सेक्शन देख लो, और उसके बाद में उसको कितने दिन में रिवर्ट करना है। सर याद है बट थोड़ा सा स्लिप नहीं कर कोई गया, सर बात अभी नहीं, बता। आप एक बार बुक देख लो, बुक होगी आपके पास, कोई जल्दी थोड़ी है, अपने को कोई जल्दी नहीं है, ये तो सत्संग है, चलता रहेगा, ये तो अनंत कथा है। यहाँ लोगों को सालों हो गए पढ़ते पढ़ते।
नरेंद्र जी, हाँ सर। आपने तो यार नोट्स की झड़ी लगा रखी है, तो बताओ ना क्या है इसमें। एक आदमी का चेक बाउंस हो गया, हम्म, पहले तो ये बताओ वो कितने दिन में नोटिस देगा, जिससे चूक से चेक मिला था, और कौन सा सेक्शन ये बात करता है। एक- एनीबडी? एमवीएस कुमार जी? सर 30 डेज का टाइम है, 15 डेज में उसको नहीं। ओके। नहीं, जैसे चेक बाउंस हो गया, ठीक है, अब चेक बाउंस होने के कितने दिन बाद वो, कितने दिन के अंदर, उसको भी कुछ टाइम तो देंगे ना हम। जैसे मान यस लीजिए, सर। जैसे वाला केस हम ठीक। देख रहे हैं, कौन सा था वो, ये। सर इसमें लिखा है लीगल नोटिस फॉर चेक बाउंस अंडर अंडर सेक्शन 113(8) of Negotiable Instrument Act must be sent within 30 days of receiving the bank return memo. अच्छा, The ठीक है। notice must demand payment within 15 days of its receipt ठीक है। by the drawer. If ठीक है। payment isn't made, a complaint can be filed within 13 days of following that 15 days period. हम्म। ये सब गूगल में लिखा है सर। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो 30 डेज के अंदर उसको नोटिस देना है, और 30 डेज वो बोलेगा भाई 15 डेज के अंदर मेरी पेमेंट करो, ऐसा बोल रहे हो? हाँ यस सर, सर। हाँ, यस। है ना, यही है यस। ना? हाँ। हम्म। हाँ, तो अब इसमें यही कहा, इन्होंने ये कहा भाई, इन्होंने स्टैट्यूटरी डिमांड नोटिस दे दिया अंडर सेक्शन 138, read with section 141, calling upon the company its three directors, the appellant number 1 to 3, to pay this amount within 15 days of the receipt of the notice। ठीक है। अब इन द मीन टाइम क्या हुआ, एक सेक्शन 8 वाली एप्लीकेशन जो है वो एडमिट हो गई। अब ये तो खुश हो गया, इसने सोचा मॉरेटोरियम चल गया, अब तो, अब मॉरेटोरियम लग गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? अब जब मॉरेटोरियम लग गया, तो क्वेश्चन ये उठा कि ये जो सेक्शन 14 है, वेदर इट वुड कवर द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, एंड इज इट परमिटेड टू इनिशिएट द चेक बाउंस प्रोसीडिंग्स अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, क्योंकि वो क्या बोलता है, 14 बोलता है भाई कोई भी प्रोसीडिंग कंटिन्यू नहीं रह सकती। ठीक है ना? तो इसमें क्वेश्चन ये था, चेक तो कंपनी के ही थे ना बेसिकली, साइन डायरेक्टर ने किए थे, तो इज इट परमिटेड टू इनिशिएट द चेक बाउंस प्रोसीडिंग्स अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, or to continue the proceedings against the CD and its directors when the CD is about to resolve its bankruptcy issue or in an ongoing CIRP। तो डिसीजन ये कहा कि भाई सेक्शन 138 टू 141 इज ए प्रोसीडिंग अगेंस्ट ए कॉर्पोरेट डेटर, इट इज कवर्ड बाय सेक्शन 14(1)(a। ठीक है। And moratorium provisions contained in section 14 of the IBC would apply only to the corporate debtor, the natural persons mentioned in section 141 continuing to be statutorily liable under chapter 17 of the Negotiable Instruments Act। क्योंकि क्या होता है, जब आप किसी को रिस्पोंडेंट बनाते हो ना, तो एक कंपनी को भी नोटिस देते हो और डायरेक्टर्स को भी नोटिस देते हो। ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कंपनी के अगेंस्ट में तो मॉरेटोरियम है, लेकिन जो नेचुरल पर्सन्स हैं दे कंटिन्यू टू बी स्टैट्यूटरी लायबल, ये था। अब इसमें अपने को देखना क्या है कि, अच्छा ये बताओ, ये पी मोहनराज कौन था इसमें, ऐसा भी पूछ लेता वो कि पी मोहनराज था कौन। और ये डायरेक्टर था हैं? शायद। पी मोहनराज? एक बार जरा देख लें इंडियन कानून .org पे।
सर एपेलेंट है सर, एपेलेंट। अरे एपेलेंट तो है यार, एपेलेंट से क्या होता है एपेलेंट? वो तो सभी को पता है, जिसका नाम पहले लिखा होता है एपेलेंट होता है। मतलब वो डायरेक्टर था, आरपी था, हाँ। क्या था वो, ये पूछ रहा हूँ मैं। ओके सर, हाँ सर। पी मोहन राज एंड सन्स। एपेलेंट तो नेचुरल बात है, होगा ही। जो पहला होता है वो एपेलेंट होता है, बाद वाला रिस्पोंडेंट होता है। इसमें कौन सी बड़ा आपने वो कोई खोज कर दी? ये देखो, ये कहानी है, मैं इसको शेयर करता हूँ। उफ, एक मिनट। शेयर। ये ये नजर आ रहा होगा। हम्म। ठीक है जी। हम्म। Jayanth Muthraj, learned senior advocate, appearing on behalf of the appellants. सर मोहन मोहन शब्द है ना सर, 3 या 4 जगह पे ही है सर। कंट्रोल फाइन करके लिखेंगे ना तो पता चलेगा सर। नहीं, आप करो, करो, आप ही कर लो। क्या है उसमें, कौन है ये पी मोहन राज? डायरेक्टर है कोई और है? अरुण मोहन, मोहन। He's a director. He's a director of Diamond Chemical Engineering. ओके ओके, ग्रेट, ठीक है, सही है। तो ही वॉज द डायरेक्टर, है ना? Mhm. हाँ, ओके। इट इज अवेलेबल इन दिस जजमेंट इटसेल्फ या कहाँ? They have given based on the Supreme Court judgment. Can I read? यस यस यस। See, based on Supreme Court judgment in Mrs. Shah, Mohan Raj Vandatas versus Mrs. Shaw Brothers Ispat Private Limited. Mohan Raj was not an employee or official of Shaw Brothers Private. Instead, he was a director or responsible person of Diamond Engineering Chennai Private Limited, the corporator, which was the party against whom Shaw Brothers initiated legal proceedings. Yeah, this is a relationship and legal position outcome. Yeah. इन 77 इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। 77 कहाँ पर है? 77, 78 हो गया, 78 के पहले 77 कहाँ चला गया? In view of our aforesaid analysis, we arrive at the irresistible conclusion that for maintaining the prosecution under Section 141 of the Act, a sign array
arraigning of a company as an accused is imperative. The other categories of offenders can only be brought in the dragnet on the touchstone of vicarious liability as the same has been stipulated in the provision itself. Since the corporate debtor would be covered by the moratorium provision contained in section 14, by which continuation of section 138 to 141 proceedings against the corporate debtor and initiation of section 138-141 proceedings against the said debtor during the CIRP period are interdicted, what is stated in paragraphs 51 and 59 in Anita Hada would then become applicable. The legal impediment contained in section 14 would make it impossible for such proceedings to continue or be instituted against the corporate debtor. Thus, for the period of moratorium, since no section 138 to 141 proceedings can continue or be initiated against the CD because of a statutory bar, such proceedings can be initiated or continued against the persons mentioned in section 141(1) and 141(2) of the Negotiable Instruments Act. तो अब आप ये बता दीजिए 141(1) और 141(2) में क्या लिखा है? बस आपके पास बेयर कोड है, बेयर एक्ट है क्या? मैं अपनी साइट पे देखता हूँ, साइट पे होना चाहिए. हम्म, हाँ साइट पे तो है. ये साइट पे 141 एक मिनट. According to 141, it says that हम्म, the company commits an offense, directors, managers, or partners in charge of and responsible for the business are deemed guilty along with the company. हाँ बस 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 यही है. हाँ तो यही 141 142 की बात करता है बेसिकली. तो वो ये कह रहा है भाई स्टैट्यूटरी बार है, तो इसीलिए हम कंपनी के अगेंस्ट तो प्रोसीड नहीं कर सकते क्योंकि मॉरिटोरियम लगा हुआ है, लेकिन हम डायरेक्टर्स के अगेंस्ट में जो 141 और 141(2) में लिखा है उसके अगेंस्ट में हम प्रोसीड कर सकते हैं. कोई एक्ट ना मिले ना मेरी साइट पे चले जाया करो, साइट पर सारे एक्ट हमने डाल रखे हैं इसमें. कई बार होता है भाई नहीं खरीदा या नहीं मिला. तो 141(1), if the person committing an offense under section 138 is a company, every person who at the time the offense was committed was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business as well as the company shall be deemed to be guilty. ये 141(1) बोलता है. और 141(2) बोलता है कि where an offense under this act has been committed by a company and it is proved that the offense has been committed with the consent or connivance or is attributable to or any neglect on the part of any director or manager, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty. तो ये दोनों बातें बोलता है 141 1 और 2. ठीक, चलिए ये हो गया. तो इसमें ये कहा भाई ठीक है कंपनी के अगेंस्ट में हम नहीं प्रोसीड कर सकते, बट वी कैन प्रोसीड अगेंस्ट द डायरेक्टर्स बिकॉज व्हाट इज गिवन इन सेक्शन 141 1 एंड 2. ये था हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. अच्छा और एक, तो चलो हमने कुछ इसमें पढ़ लिया. अच्छा अब जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट खोला ही हुआ है तो लाइबिलिटी भी बता दो कितनी लाइबिलिटी है इसमें, मतलब कितना पनिशमेंट कितना है, जेल कितनी है, 2 साल की है, ट्वाइस द अमाउंट, क्या है, क्या लिखा है? Sir, fine तो twice the amount है और punishment 3 years. हाँ ठीक है. और अपील कितने दिन में हो सकती है ये भी बता दो. आपने 141 की जजमेंट आ गई उसके इसमें अपील भी तो कर सकता होगा बंदा, तो अपील कितने दिन में कर सकता है? अभी एक तो खोली रखा है, बता दो जरा क्या है. क्यों नरेंद्र जी? सर. भाई आपकी जजमेंट आ गई ठीक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हाँ एक्ट की कि भैया यस इसको सर. जेल कर दो, ट्वाइस दी अमाउंट जो है 2 लाख का चेक था 4 लाख की पेनल्टी लगा दो. हम्म. तो इसके इसमें अपील करनी है, तो अपील पहली बात तो करनी कहाँ पर है और कितने दिन में करनी है, कितनी फीस लगेगी? So
30 to 90 days है, ओके, depending on डिपेंडिंग अपॉन, the court. ओके, ठीक है, Court is within 90 days, while others may be for 30 days. ओके, चलिए ठीक है, थोड़ा ग्रुप में लिख देंगे इस बारे में, है ना, डिटेल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पीएमएलए राजीव चक्रवर्ती, है ना, और शिवचरण, शिवचरण के बारे में पूछ रहे हैं आजकल, और बरसाना इस्पात, ये तीन है। तो एक बार देख लेते हैं। हम्म, तो सबसे पहले तो राजीव चक्रवर्ती देखते हैं। तो राजीव चक्रवर्ती में क्या बोला? राजीव चक्रवर्ती में ये बोला कि ये जो इम्यूनिटी है अंडर सेक्शन 32A, इट डज नॉट एक्सटेंड टू पीएमएलए अटैचमेंट्स। ठीक है, राजीव चक्रवर्ती में तो ये बोला। और शिवचरण में बोला कि दे वेकेटेड द पीएमएलए अटैचमेंट्स इन फेवर ऑफ द सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स। और बरसन्ना इस्पात में सेक्शन 14 डज नॉट ओवरराइड पीएमएलए इन मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। ये तीन जजमेंट थी, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। राजीव चक्रवर्ती पहले देखते हैं। ये पीपीटी शेयर्ड है मेरी? नहीं अभी फेयर है सर, शेयर्ड है दिख ना? रही है, हाँ दिख रही है सर। एक मिनट, तो इसमें पहले हम करते हैं, पहले हम चलते हैं हाई कोर्ट वाले पे। हाई हाई कोर्ट, कोर्ट 2 नंबर। हाँ, ये हाई कोर्ट का 2 नंबर, ये ये 2 नंबर है ना। तो इसमें क्या है, हम्म आप इसके ऊपर ही कंट्रोल प्लस एंटर करोगे ना, तो ये खुल जाएगा इस तरह से। हम्म हम्म हम्म। तो राजीव चक्रवर्ती, राजीव चक्रवर्ती में क्या बोलता है? ये बोलता है इंटरप्ले बिटवीन आईबीसी एंड पीएमएलए। So whether the moratorium under section 14 prevents the enforcement directorate from attaching the properties of a corporate debtor under PMLA। ठीक है, रेशो क्या हुई इसमें कि इंटरप्ले बिटवीन आईबीसी एंड पीएमएलए, द moratorium under section 14 does not prevent the enforcement directorate from attaching properties of a corporate debtor under PMLA, as PMLA proceedings are distinct from IBC and serve a different legislative purpose। ठीक है, impact of section 32A, the protection under section 32A of the IBC, which provides immunity to the corporate debtor from prosecution for prior offences once a resolution plan is approved, does not extend to attachments made by the ED under the PMLA। The legislative intent behind section 32A was to facilitate the revival of a corporate debtor by providing a clean slate, but it does not interfere with the actions taken under PMLA to deal with proceeds of crime। तो सबसे पहले तो इसकी कहानी बता दीजिए कि कहानी थी क्या इसमें, राजीव चक्रवर्ती वाले केस में क्या कहानी थी इसकी, पता कुछ? हाँ जी, प्रोसिक्यूशन सर, हम्म, प्रोसिक्यूशंस। प्रोसिक्यूशन, कहानी बताओ ना। सर once resolution plan has been approved under the IBC, prosecution under PMLA has been automatically cancelled। तो राजीव चक्रवर्ती ने क्यों केस किया ये? राजीव चक्रवर्ती तो आरपी था, राजीव चक्रवर्ती ने क्यों केस किया? केस है राजीव चक्रवर्ती आरपी वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। कहानी ये है, मैं पढ़ता हूं। ड्यूरिंग सीआईआरपी द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पास्ड प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर्स अगेंस्ट द सीडी। सीआईआरपी के दौरान, ठीक है। अब आरपी ने क्या किया? एग्रीड बाय द ऑर्डर्स, आरपी फाइल्ड एन एप्लीकेशन सीकिंग डायरेक्शंस टू रिस्ट्रेन द ईडी फ्रॉम प्रोसीडिंग फर्दर फ्रॉम टेकिंग एनी एक्शन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सीआईआरपी। इसने बोला भाई सीआईआरपी चल रही है, आप एक्शन कैसे ले सकते हो सीआईआरपी पीरियड में? तो हाई कोर्ट हेल्ड दैट द अटैच्ड प्रॉपर्टी अंडर द पीएमएलए
comes to vest in the union government only upon the passing of an order by a special court under the provisions of the PMLA, and therefore the provisional attachment of properties does not violate section 14 of the code. इन्होंने कहा भाई अभी तो provisionally attach की है property, ठीक है. It observed that assets which may have been obtained by the commission of a scheduled offence cannot be accorded exemption or immunity from the rigors of the PMLA. चार्जर नहीं लगाया क्या, ऑन नहीं किया. तो वही कहता है कि भैया पीएमएलए वालों पे कोई इम्यूनिटी नहीं है. It observed that assets which may have been obtained by the commission of a scheduled offence cannot be accorded exemption or immunity from the rigors of the PMLA, which is not subservient to the moratorium provisions comprised in the code. PMLA seeks to subserve a larger public policy imperative and is an enactment representing a larger public interest, namely the fight against crime and the debilitating impact that such activities ultimately have on the society and the economy of nations as a whole. It also relied upon following observation in the 2020 report of the Insolvency Law Committee. The moratorium provision is not liable to be interpreted as barring all possible actions, especially where countervailing public policy concerns are involved. It also took note of law prevailing in different jurisdictions which permit regulatory actions which, though not aimed at collecting monies for the estate, protect other vital and urgent public interests. इस केस में हुआ क्या था कि जिस बंदे ने लोन ले रखा था ना, वो उसकी कहानी क्या थी, एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने कहा भाई इसने कुछ जो प्रॉपर्टीज एक्वायर की है ना वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से की है, जैसे लोन वगैरह ले रखा था. एक बैंक का केस था, एक्सिस बैंक था मेरे हिसाब से इसमें. तो एक्सिस बैंक से इसने लोन ले रखा था. अब इन्होंने कहा कि भाई जो प्रॉपर्टीज है ना कंपनी के पास में, जो डायरेक्टर ने या कंपनी ने जो भी प्रॉपर्टीज एक्वायर की हैं, ये क्या है, क्रिमिनल प्रोसीड से एक्वायर की हैं. तो उन्होंने जो कंपनी की प्रॉपर्टी थी वो भी अटैच कर दी थी इसमें. कहानी ये थी बेसिकली इसके अंदर. तो ये है पूरा लिस्ट ऑफ फैक्ट्स. यहां अप्रैल 19 2018 को ईडी फ्रोज 74 बैंक अकाउंट्स ऑफ EIEL. ठीक है. Insolvency proceeding commenced. Adjudicating authority upheld the freezing of bank accounts. ED attached 49 bank accounts under section 5 of PMLA. Adjudicating authority confirmed the order of attachment. Then corporate debtor received an income tax refund. ED attached 2 tunnel boring machines. ED attached the income tax refund. Contempt petition filed by the petitioner. Contempt petition dismissed. Supreme Court stayed further CIRP proceedings. And Supreme Court vacated the interim stay on CIRP. ये थोड़ा इसका पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था. तो वो ये कहता है कि भाई ये जो है 32A में भी PMLA में ऑपरेट नहीं करेगा. ये 32A. और केस कौन सा था इसमें, एक था शिवचरण वाला. शिवचरण वाला केस क्या है, ये शिवचरण एंड अदर्स वर्सेस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर PMLA. इसमें ये कहा बेसिकली कि DSK Southern Projects Private Limited, it was subjected to multiple FIRs in October 2017. इनके अगेंस्ट में बहुत सारी FIRs थी, alleging offences such as cheating and criminal breach of trust. These offences were classified as scheduled offences under PMLA. ठीक है. इनके अगेंस्ट में बहुत सारी FIRs फाइल हुई. अब ED ने अटैच कर दी इनके एसेट्स ऑफ द CD, और दिस अटैचमेंट वाज कंफर्म्ड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर PMLA. ठीक है. इसके बाद में CIRP इनिशिएट हो गई इस कंपनी की. एक रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया शिवचरण ने. ठीक है. इट वाज अप्रूव्ड बाय NCLT. And despite the approval of the resolution plan, the ED did not release the attached properties, leading to legal challenges. ठीक है. रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया,
उसके बाद में भी ईडी ने जो प्रॉपर्टीज अटैच की थी वो रिलीज नहीं की। अब कहानी ये है कि वेदर द एनसीएलटी हैज द jurisdiction to direct the ईडी to release properties attached under the PMLA by invoking section 32A, and whether the continuation of the attachment under the PMLA post approval of a resolution plan under the IBC is valid। कहानी ये है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा? बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 32A ऑफ द आईबीसी इज ए नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज, which means it overrides conflicting provisions in other laws, including PMLA. So this section provides immunity to the corporate data and its assets from prosecution or attachment, provided there is a change in management to persons not related to the previous management. The court held that the NCLT has the jurisdiction under section 60 subsection 5 of the IBC to direct the release of asset attached under the PMLA once a resolution plan is approved and the conditions under section 32A are met। ठीक है। This ensures that the objectives of the IBC, which include the revival of the corporate debtor, are not defeated by parallel proceedings under other statutes। ED's contention that the NCLT overstepped its jurisdiction was rejected। The court emphasized that the NCLT's directions were within its purview to ensure the effective implementation of the resolution plan। ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है? द बॉम्बे हाई कोर्ट्स डिसीजन अंडरस्कोर्स द प्राइमेसी ऑफ द आईबीसी इन केस ऑफ corporate insolvency and clarifies that once a resolution plan is approved and the stipulated conditions are satisfied, the corporate data and its assets are protected from actions under the PMLA। This judgment reinforces the objective of providing a fresh start to the corporate data and ensures that the insolvency resolution process is not undermined by concurrent proceedings under other। But basically शिवचरण का तो कुछ लेना देना नहीं था ना। शिवचरण जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है, ये तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है। इसका रेजोल्यूशन प्लान पास हो गया तो भैया इसके असेट्स तो इसको दो। कहानी यहां पर ये है। ठीक है। एनसीएलटी वाली जजमेंट 1 बरसाना इस्पात। बरसाना इस्पात में क्या बोला? क्या नरेंद्र जी पढ़ो जरा, क्या है? Yes, sir. The Director of Enforcement of Central Government did really attach some of the properties of Varsana Ispat Limited corporators. The resolution professional filed application before the adjudicating authority NCLT Tribunal Kolkata Bench, Kolkata, for releasing the attachment of certain assets of the CD by Deputy Director of Enforcement. The attachment order was issued on 10th August 2017 prior to the order of declaration of moratorium in the case in hand. Thereafter, an order releasing the order of attachment by the Director of Enforcement is not maintainable. The aforesaid order dated 12th of July 2018 is under challenge in this appeal. Issues involved: whether order of attachment by Enforcement Director is maintainable; 2. Whether Section 14 of the Code is applicable to criminal proceedings or any penal actions taken pursuant to criminal proceedings or any act having essence of crime or crime proceeds. Whether PMLA 2002 override IBC. Argument put forth: Section 14 of IBC 2016 Insolvency and Bankruptcy Code for short has an overriding effect of the provision of the PMLA 2002. A reference was made to section 238 of the code, IBC code. It was submitted that during the period of moratorium, the creditor and all the authorities causing any disruption in the CIRP cannot be allowed to do so. The provisional order of attachment cannot be confirmed by the Directorate of Enforcement during the period of moratorium. Analysis and decision in Varsana Ispat Limited versus Deputy Director of Enforcement, the National Company Law Board, the National Company Appellate Tribunal (NCLT) ruled that Section 14 of IBC does not override the prevent PMLA in case of money laundering. This means that assets seized by the ED under PMLA even during moratorium period of IBC cannot release under Section 14. The enclave emphasized that PMLA deals
with proceeds of crime and money laundering makes section 14 of IBC inapplicable to this such cases. हम्म The Prevention of Money Laundering Act 2002 relates to proceeds of crime and the offense relate to money laundering, resulting in confiscation of property derived from or involved in money laundering and for matters connected therewith or incidental thereto. Thus, has a Prevention of Money Laundering Act 2002 or provisions तो बेसिकली therein इसमें क्या relate. कहा, इन्होंने ये कहा कि भाई सेक्शन 14 इज नॉट एप्लीकेबल टू सच प्रोसीडिंग्स. Okay, अब sir. regarding penalty, they said insofar as penalty is concerned, offense of money laundering is punishable with rigorous imprisonment, which is not less than 3 years, has nothing to do with the corporate data. इन्होंने कहा भाई देखो, जेल होगी किसको होगी, कंपनी को तो होगी नहीं, है ना. जेल तो होगी Yes. डायरेक्टर्स को, तो उसमें क्या Hmm. दिक्कत है. इट विल बी एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल which may include the ex-directors and shareholders, and they Of cannot the be given protection from the Prevention of Money Laundering money Act. laundering. And such individual cannot take any advantage of Section 14. This Oh, apart, we find that the attachments were made by the Deputy Directorate of Enforcement much prior. They cannot derive any advantage out of Section 14. तो कहा अटैचमेंट जो है ये तो CIRP से पहले ही शुरू हो चुकी है. ठीक है. Whereas the Prevention of Money Laundering Act relates to different fields of penal action of proceeds of crime, it invokes simultaneously with the INB Code, having no overriding effect of one act over the other, including the Insolvency and Bankruptcy Code. Appeal is therefore dismissed. तो इन्होंने ये कहा कि भाई दोनों का फील्ड ही अलग अलग है. ठीक है. क्योंकि इनके एसेट्स अटैच हो गए थे वर्सन्ना इस्पात के, तो वर्सन्ना इस्पात ने अपील फाइल की थी NCLAT पे. ठीक है. तो उन्होंने कहा भाई ये अपील इनकी डिसमिस कर दी. कहा ये अलग है वो अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, चल सकता है. चलिए अगला और देखते हैं. या यहाँ का सत्संग यही समाप्त करें आज. yes, sir. हम्म. Yes. भैया देखो मेरी इज्जत रख लेना है, पढ़ रहे हो नरेंद्र जी. हाँ सर. हैं. को भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सर, पढ़ फिर भी हम पढ़ रहे पढ़ने से कुछ नहीं होता, जब पास होना जरूरी है भाई. हैं. सर हैं? अभी अभी हमारा बैकग्राउंड तो आपको पता ही है सर. अभी तो मतलब पूरा हो जाए पक्का, उसके बाद ही बैठेंगे सर एग्जाम में सर. अभी हाँ. ऐसा है सर. बट 2026 में कर लो क्लियर इसको. हाँ, नहीं नहीं, उससे पहले सर करना है सर. पक्का पक्का करेंगे सर, करेंगे सर. ओके जी, ओके ओके, गुड नाइट. थैंक यू सर. गुड नाइट सर. गुड नाइट सर. नमस्ते सर. हाँ सर. Thank you. हाँ सर. Thank you.